السلام علیکم، آداب۔ میں محمد جعفر، سرو دھارمک مانو ایکتا شانتی منچ نیشنل پریزیڈنٹ۔ آج کی جو باتیں ہیں وہ مسلمانوں کو لے کر، ہمارے اسلام کو لے کر، جو ہمارے مسلمانوں میں محبت دلوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور زیادہ محبت ابھی جانوروں میں نظر آ رہی ہے۔ یہ ہم سوچیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح سے انسانوں میں پوری طرح سے محبت برخاست ہوتی آ رہی ہے، اور یہ خاص طور سے مسلمانوں میں دیکھنے ملے گا۔ یعنی کہ کوئی بھی کام اگر سے ہوگا، کوئی مقصد سے ہی ہوگا، بغیر مقصد سے کوئی کسی سے نہیں ملے گا۔ یعنی کہ ہر وہ چیز پیسے سے ہی ہوگی، یہ سچائی ہے۔ تو آج کل جو دیکھنے میں آ رہا ہے، اور جو شروع سے ہماری قرآن کریم کتاب جو ہم کو بتاتی ہے، یعنی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، تو ضروری ہے ہمارے اندر کثرت سے سچائی ہو، اور ہم امن اور شانتی کا پیغام دیتے ہوئے سب کچھ جوڑنے کی بات کریں، نہ کہ توڑنے کی۔ بہرحال یہاں پر جو چل رہا ہے، جو زیادہ سے زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ہر وہ چیز، یعنی کہ جس کی زبان پر ذکر الہی ہوگا، جو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہے گا، وہی کامیاب ہوگا، اور اسی کی تائید دنیا میں ہوگی، اور وہی کامیاب ہوگا۔ یہ سچائی ہے۔ تو یہ چیز انسانوں سے زیادہ جانوروں میں نظر آ رہی ہے۔ یعنی کہ جانور اور وہ تمام چیز جس کو اللہ نے بنایا ہے، جین و جنات، اور ملائکہ، سب تمام چیزیں اس میں آ گئی، جھاڑ، ہر وہ چیز آ گئی۔ تو بہرحال ساری کائنات میں ہر وہ چیز، جاندار چیز جو اللہ کی ذکر میں لگی رہتی ہے، جو غیب میں ہے، جو ظاہر میں ہے، وہ سبھی، مگر اللہ کی عبادت سے دور کوئی ہوتا گیا ہے اور ہو گیا ہے پوری طرح سے، تو وہ ہے انسان، چاہے وہ کوئی سے ہی مذہب کا، اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ بہت بڑی ایک تباہی کی طرف مسلمان آ چکا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ ٹوٹل اللہ کی عبادت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر اب محبت کیسا پیدا ہوگی؟ تمام چیزیں ہمارے اندر جبھی پیدا ہوں گی جب ہمارے اندر ہم جس مذہب کے ہم ہیں، اس مذہب کا پوری طرح سے ہمارے اندر گیان ہو، یعنی کہ اس کی تعلیم ہو۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اندر روحانیت ہو۔ روحانیت جبھی آئے گی جب ہم سچائی پہ چلیں گے۔ تمام وہ باتیں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال ہمارے دلوں سے محبت اس طرح کا ختم ہونا، یہ پوری طرح سے ثابت ہو گیا ہے کہ بہت بڑی بربادی کی طرف ہم آ چکے ہیں، بہت بڑی تباہی ہونے والی ہے۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہر وہ چیز سننے میں آتی ہے، جس طرح سے بغیر علم کے کچھ بھی کوئی بھی بول دیتے ہیں، اور کوئی علم رکھ کر بھی کچھ بولنے آتے ہیں تو ان کی زبان ٹیڑھی مینگی چل جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ ہم ہوس اور لالچ میں ڈوب چکے ہیں۔ ہم صرف جھوٹ کے سہارے ہی زندہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور ہم کو سب سے زیادہ پیاری کوئی چیز ہے تو وہ دنیا ہے۔ ماں باپ بھی نہیں، بھائی نہیں، بہن نہیں، کوئی نہیں، سب مطلب سے، ہر رشتہ مطلب سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی مطلب سے ہی ہے، بغیر مطلب کی کوئی رشتہ نظر کہیں بھی نہیں آتا۔ یہ بہت بڑی سچائی ہے۔ تو اب جب خون کا رشتہ ہی، اسی میں ہی محبت نہیں باقی رہی، تو دوسرے رشتے
नाते रिश्ते जो लगा के रखते हैं वहाँ पर ये मोहब्बत कहाँ नज़र आएगी। तो इसमें भी कुछ इक्का दुक्का जो होते हैं सच्चाई की तरफ जो है वो इन बातों को समझ सकते हैं और सच्चाई पे चल सकते हैं। जिस तरह का माहौल बनता आ रहा है, क्या नहीं कि कोई भी कुछ भी अगर सच सच भी बोलता है तो उस पर विश्वास नहीं किया जाता। बहरहाल झूठे पर बहुत जल्दी हमारा यकीन बनता है और उस पर उसका हम साथ देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लालच, झूठ में लालच होती है। झूठ एक ऐसी बीमारी है, उसमें लालच के लिए वो कुछ भी ऐसा काम करेगा, जल्दी जल्दी दौलतमंद बनने की ख्वाब देखेगा, करोड़पति बनने की चक्कर में चल जाएगा। बहरहाल गुनाह कबीरा की तरफ बढ़ता जाएगा और सच्चाई की तरफ आने की इसकी जुस्तजू बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये ख़ास तौर से मुसलमान में ये बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो चुकी है, ये पूरी तरह से तबाही की तरफ है। यहाँ तक कि इस्लाम के अरकान 5 है, नमाज, रोज़ा, ज़कात। यहाँ पर कोई तौहीद बोलते हैं तो असल वहाँ पर जहाद है, उसके बाद हज है, यानी कि 5 अरकान इस्लाम। मगर जहाद बोलने से भी मुसलमान डरता है, क्योंकि उसको जहाद के मायने समझाने नहीं आती है। जहादी जो हमको भारत में कहा जाता है, आतंकी जो हमको कहा जाता है, जिस दिन इनको ये जहाद का मतलब समझ में आएगा वो सीधी दिशा में आएंगे। जहाद का मतलब धर्म युद्ध कहा गया है, यानी कि धर्म का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, जिससे आखिरी लड़ाई होगी, यानी कि अंतिम युद्ध होगा। ये हर वो धार्मिक किताब से साबित होता है। तो बहरहाल तो जहाद को हटाते हुए हम बचपन से देखते आए, कई किताबों में सब चीज़ वहाँ पर यही लिखा होता था, मगर वहाँ से जहाद को हटा दिया गया। कुरान करीम भी कई मरतबा जहाद का जिक्र है। तो बहरहाल जहाद कई किस्म का होता है, ज़बान का, कान का, आँख का, नाक का, पैर का, हाथ का, हर वो चीज़ का जहाद होता है। जहाद का मतलब जिद्दोजहद, यानी कि हमारे अंदर एक सच्चाई को हम किस तरह खुलकर पेश करें और हम नफ़रत को मिटाते हुए अमन और शांति किस तरह कायम करें। हर वो चीज़, यानी कि झूठ से परहेज़ करो, मेन है। गलत नज़र मत देखो, गलत बातें मत सुनो, कुछ सुनते भी है तो उसको फौरी निकाल दो दिमाग से, अपने दिल से फैसले लो, तमाम वो बातें आती हैं। तो बहरहाल यहाँ पर जो माहौल बनता आ रहा है, तो तमाम जहाद आखिरी लड़ाई है, नहीं बोल के नहीं, मगर उसको खुलकर अगर तुम समझा सकेंगे तो सामने वाले दूसरे मज़हब को समझ में भी आएगा। जिस तरह से हर वो मज़हब में युद्ध किया गया है अपने मज़हब के खातिर, इसमें भी है। जब कोई हद पार हो जाती है, जब खुलेआम दुश्मन अपनी दुश्मनी खुलकर दिखाता है, खुलकर इस्लाम के ख़िलाफ़ बगावत करता है, तो उससे युद्ध होता है, यानी कि जहाद होता है। ये तमाम बातें। तो बहरहाल यहाँ पर जो हमारे अंदर जो लालच और डर क्यों पैदा हुआ, किस वजह से हो रहा, हम कुरान करीम से दूर होते गए, बिल्कुल दूर होते जा रही। सिर्फ हमारे अंदर लालच है, उन्हें किस तरह आगे बढ़ रहा, मैं किस तरह आगे बढ़ूँगा, अरे उन्हें इतना आगे निकल जा रहा, मैं कैसा आगे निकलूँगा। ये बीमारी जो है ये बर्बाद करेगी मुसलमान को, बहुत बुरी तरह से मुसलमान बर्बाद होगा। जिस तरह की बातें निकल कर आ रही है, हर कोई यही कहता है, यानी कि जो पढ़ा लिखा भी है तो उसको गलत तरीके से उसको बयानबाजी करेगा। जिस तरह से इस्लाम को लेकर बातें निकल कर आती है, पूरी दुनिया में इस्लाम तलवार की नोक पे फैला, यानी कि तलवार दिखाकर धमकाकर उसको इस्लाम में दाखिल करे। अरे बेवकूफ़ हो, वैसा कुछ भी नहीं है जो तुम कहते हो। इस्लाम अगर तलवार की नोक पे फैलना होता तो 1400 साल हो चुके होते, पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम होकर। हमने कई वीडियो में कहा है, वो हमारे 4 सहाबा ही काफ़ी थे उसके लिए। हमारे आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर अल्लाह ने भेजा है। और यहाँ पर ही बहुत सारी बारीकियाँ, बहुत सारी बातें हैं, मगर हमारे में जो फ़िरक़े बने हुए हैं, इन फ़िरक़ों की जो बातें होती हैं
ये सुनते सुनते ही दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाता है, क्योंकि हर एक का एक अलग अंदाज, हर एक अलग अंदाज से अपने आप को सही साबित करने लगा है मुसलमान। ये तंजीम वो तंजीम, मगर कहीं में भी कुछ भी नज़र नहीं आता। कोई कोई है सच्चाई की तरफ इक्का दुक्का मिलेंगे जिसमें, मगर हर कोई सिर्फ नफ़रत फैलाने वाले ही और झूठ के सहारे के साथ ही आगे बढ़ने, यानी कि इस्लाम को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुरान को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने मतलब के लिए, अपनी ही ऐशो आराम के लिए तमाम बातें। तो यहाँ पर जो गलत फहमियाँ है, ये ज़रूरी है इन लोगों के दिमाग से निकालना, क्योंकि भारत है, भारत में कसरत से धर्म प्रवेश करते हैं कई मज़हब। तो इन सारे मज़हबों के साथ चलने के लिए हमको ज़रूरी है हर वो मज़हब की शिक्षा हमको मिले। ये सच्चाई है। जब भी हम सारे मज़हबों को पहचानते हुए, समझते हुए हमारा इस्लाम खुल के हम पेश कर सकते हैं, ये सच्चाई है। तो बहरहाल यहाँ नफ़रत जो फैलाने की कोशिश की जा रही है, देखो बोले मुसलमान कितने बढ़ते जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, हम पीछे रह गए, ये रह गए, इनकी इतनी हिम्मत क्यों हो रही है बोलने की, क्या वजह से? वो समझ चुके हैं मुसलमान कई फ़िरक़ों में बढ़ चुका है और मुसलमान के अंदर एक लालच पैदा हो चुकी है जो पूरी तरह से मुसलमान गुमराही की तरफ। अब इनको हम जरा चाहे बोलो, जो चाहे बोलो, इनका कोई हमारी बातों पे कोई जवाब देने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोगों को हम ऐसा डरा चुके हैं, ये क़ानून वो क़ानून सब कुछ बोलकर, इस तरह के आप पे केस होंगे, वो होंगे। क्यों होंगे भाई? अगर से आप सही तरह से कुरान करीम को समझाएंगे, समझकर समझाने की ताकत रखते हैं, तो कुरान करीम में नफ़रत का नामो निशान कहीं से भी नहीं आता। इस्लाम में वो चीज़ है ही नहीं, सिर्फ मोहब्बत से ही इस्लाम फैलता और फैलता रहेगा, पूरी दुनिया में फैल जाएगा इस्लाम, सच्चाई है। तो जो बताता है, ऐसे आते रहते हैं पाखंडी लोग भगवा रंग पहनकर, जैसा मुसलमानों में आते हैं, सर पे टोपी सब कुछ लगाकर अपनी बकवास करके एक नफ़रत भरी बातें करके निकल जाते हैं। तो बहरहाल ये हालात जो चल रहे हैं, इसको हमको ज़रूरी है गौर करते हुए हमको आगे बढ़ना है। ऐसा कि हथियार के बारे में बात करता है कोई, हथियार देखो मुसलमानों का निकाह जमा कर रहे हो लोग, सब चीज़ उनके पास रह गए। मुसलमान को ज़रूरत ही नहीं है हथियार की, मुसलमान को हथियार की ज़रूरत शुरू से नहीं है। जब से इस्लाम, तो दुनिया जब से बनी जब से इस्लाम है, मगर जो आखिरी मज़हब सबको एक करने की जो बात हुई 1400 साल हो गए। तो वहाँ से जो हमारे इस्लाम की जो लड़ाई हुई है दुश्मन इस्लाम से लड़ाई, यानी कि अपने ही लोगों से लड़ाई। क्योंकि यहाँ पर जो होता है मैं बड़ा तू बड़ा जो लेकर चलते हैं, इसी में सारी खेल होते हैं। तो लड़ाई जितने भी लड़े गए यहूदी से, जिससे भी लड़ी गए, तो बहरहाल वो लड़ाई में मुसलमान हथियार लेकर नहीं, बहुत कम हथियार के साथ ही आगे निकला, मुकाबला करा और जीत हासिल करा। ये सच्चाई इस्लाम की है, इस्लाम की पहचान है। और हमारे आका है तो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए आखिरी नबी है, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए हैं। ये तमाम चीज़ें साबित होती है। तो यहाँ पर नफ़रत फैलाने की कोशिश इसमें जो हो रही है, कुछ हमारे मुस्लिम मौलानाओं की वजह से हुई, जो गलत दिशा में कुरान करीम को पेश करने गए। हदीसें कई है, सब कुछ है, मगर जिस तरह से खुलकर इस्लाम को नहीं पेश कर सकते हैं, मगर अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए कई तंजीमों में बटे हैं जो पूरी तरह से बर्बाद होने वाले। ये खुल के बताऊंगा, क्योंकि सारे पेशन गोया हैं, पेशन गोई कभी गलत नहीं हो सकती। तो इतनी हिम्मत जो हो रही है दुश्मन इस्लाम की, यानी कि यहूदी, हम खुल के बोलते हैं, यहूदी जो है, जो खुल के हर वो मज़हब को टारगेट कर रहा है, जितने मज़हब है उतने मज़हब को, यानी कि उसको, यहूदी को मज़हब के नाम से ही नफ़रत है, क्योंकि वो बेधर्मी है। वो ख़ुद किसी उन्हीं के इसमें किसी का, उनका कोई आका आने वाला है, भी आने वाला है तो आएगा, उसको सब पूछेंगे, उनके ऐसे विचार है, यानी कि उनका मसीहा। तो बहरहाल जो भी खेल चल रहा है पूरी बर्बादी की तरफ है। जिस फ़ोन के ज़रिए, जिस इंटरनेट के ज़रिए हम आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, बात कर रहे हैं, यही वो सबसे ख़तरे की घंटी है जिसकी पेशन गोई हो चुकी है पहले, भविष्यवाणी, यानी कि दज्जाल इसी का नाम है।
یہ دجال پوری دنیا میں دیکھے دیکھے تک ہمارا میسج پہنچائے گا، سب کچھ کرے گا، اس سے بہت بڑی تباہی ہوگی جو ہو گئی ہے۔ اس میں خاص طور سے نوجوان لڑکیاں، چھوٹے بچے پوری طرح سے بربادی کی طرف آ چکے ہیں، سوائے بربادی کے۔ دجال وہ چیز ہے، اس کو استعمال کرنا اور اچھائی کے لیے، اچھے میسج دنیا تک پہنچانے کے لیے، مگر اس میں ہم جو اس کو استعمال کر رہے ہیں صرف ایک نفرت پھیلانے کے لیے اور گندگی پوری طرح سے پھیلانے کے لیے۔ تو اس سے ہم کو دور ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم یہی کہیں گے، حاجی بن کر، نمازی بن کر بھی ہم اگر سے سچے مسلمان ثابت نہیں ہوتے ہیں تو ایسی زندگی پہ لعنت ہے۔ سچائی کی طرف آؤ، اور سچ زبان سے سچ چلیں گا جبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ ویسے جو ہونا ہے وہ تو ہوگا اور ہو کے رہے گا، مگر بڑی بربادی سے بچنے کے لیے ہم سب کا کام ہے سیدھی دشا میں آتے ہوئے۔ ہماری بات سن کر کوئی ایک دو بھی سیدھی دشا میں آتے ہیں تو اللہ کا کرم ہم پہ ہے، سمجھنا۔ ضروری نہیں ہے کہ جتنے سن رہے اتنے برے ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے ہماری بات سب کو پسند آئے، مگر ہمارا کام ہے ہم جو بول سکتے ہیں بولتے رہے، سچائی کی طرف لوگوں کو لاتے رہے، نفرت کو مٹانے کی بات کرے، انسانیت کی بات کرے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرے۔ سرو دھارمک مانو ایکتا وشو شانتی منچ پوری دنیا میں قائم ہو، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ سچائی کی طرف آؤ۔ جے ہند، جے بھارت۔